So here this particular equation given that so given that given that linear equation given that linear equation that is equal to 2x minus y plus 3z equal to 0. लेट इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं. नेक्स्ट है आपके पास में x प्लस 5y माइनस 7z इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट है आपके पास में x माइनस 6y प्लस 10z equal to 0. Equation number 3. Okay. So now next की जो भी क्वेश्चन है उनको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. So step number 2, write down the above equation. Now write down write above equation in matrix format that is ax equal to b. Okay, so the equation will be 2 and this is 1 and this is 1 minus 1 5 minus 6 3 minus 7 and 10. ओके, वेरिएबल हैं आपके पास में x y z एंड दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स B है आपका 0 0 0. ओके, so now what we will do, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे now find mod A. Now find delta comma delta x comma delta y comma delta a. Okay. So as we know here delta represent determinant, so determinant delta a, delta means d. कुछ लोग इसको d भी लिखते हैं, कुछ लोग इसके mod of a भी कहते हैं. ओके, सो इन सभी का मतलब सेम है. सो बेसिकली हम डिटरमिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करने जा रहे हैं. सो दैट विल बी 2 1 1 minus 1 5 minus 6 3 minus 7 and 10. ओके, सो ये वैल्यू बड़ी है, सो इसको हम क्या करते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगा लेते हैं ताकि इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें. ठीक है, सो अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, सो हियर r1 equal to r1 minus 2 times of
R3, एक ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, एंड R2 इक्वल टू R2 minus R3. So determinant of A will be 0, 11 minus 17. Again 0, 11 minus 17. Okay, and next, चूंकि हमने R3 की मदद से किया है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे. So 1 minus 6 and 10. As you look here, so by this we get this particular value. Okay, and by this property we get this particular value. Okay, so as you look here that the value of R1 and R2 are same by the property of determinant since all element of since R1 equal to R2. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं all element are same, so determinant must be 0. Okay, so finally the mod of A will be equal to 0. Okay, simply इसी तरीके से हम AX निकालेंगे. AX हम कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से हम डेल्टा X या DX निकालेंगे, या फिर हम A of X when X equal to B का मॉड निकालेंगे. So the value will be 0, 0, 0 because यहाँ पे हमने X equal to B की वैल्यू. ओके, सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू जो है हमने X equal to B से रिप्लेस कर दिया है. ठीक है, दूसरी हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास में, वो आपके पास में है -1, 5, -6, 3, -7 एंड 0. ठीक है, सो ये भी आपके एलिमेंट 0 होंगे. क्यों 0 होंगे, प्रश्न उठता है कि भाई इस वैल्यू को हम क्यों 0 करेंगे. सो उसकी पीछे वजह है क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 और 0 सो डिटरमिनेंट विल बी 0. सो बाय properties since C1 0 so आपका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए. ओके, सो डिटरमिनेंट मस्ट बी 0. ओके, ठीक है. नेक्स्ट likewise delta y itself. सो x के एलिमेंट हम रखेंगे वही
सो 2 1 1 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे हमने y इक्वल टू b कर दिया है, एंड 3 -7 एंड 10, अगेन इसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा। ओके, सो डेल्टा y अगेन इक्वल टू 0। ओके, चलिए लाइकवाइज सिमिलरली डेल्टा z that is equal to 2 1 1 -1 5 and -6 0 0 0, and it must have also इसके पास भी वैल्यू 0 ही होगा। ओके, सो डेल्टा z इक्वल टू 0। सो ओवरऑल चेक करने पर देखते हैं। सो हियर system is consistent and if consistent it means solution निकलेगा, and have trivial solution। Since system is consistent, trivial solution means it has infinite solution, have trivial solution, that means system has infinite solution, so it also known as dependent solution। okay, also known as dependent solution। ओके, सो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकलेंगे तो है, तो चलिए। सो नाउ पुट द इक्वेशन, now that z equal to k in the above equations, in the linear equation, z equal to k in the linear equation। और वो linear equation कौन सी थी? linear equation थी आपके पास में, that is आपके पास में थी 1, 2, 3। ठीक है, सो नाउ द इक्वेशन विल बी, आपकी इक्वेशन क्या बनेंगे? आपकी इक्वेशन बनेंगी that will be two equation, the 2x minus y equal to minus 3k, so that is equation number 4। next equation आपकी बनेगी that x plus 5y equal to 7k, equation number 5, and x minus 6y, that is equal to minus 10k। okay, that is equation number 6। so अब हम क्या करेंगे? so from any above two equation, हम कोई भी दो इक्वेशन यहाँ पे चुनेंगे, and again follow the procedures। so now any two equations, choose any two equations,
Now choose any two equations, any two above equation. Let here equation number 4 and 5, 4 and इक्वेशन नंबर 5. ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर मैं 4 और इक्वेशन नंबर 5 चुन रहा हूँ. ओके, सो into the linear format, into the matrix format, okay, so your matrix will be 2 minus 1 1 5 and x y that is equal to minus 3k and 7k. Okay, so again now this, from this we will find out a. So now so again find out, so find delta comma delta of x comma delta of y. Okay, so delta means d determinant means mod of a. So mod of a means mod of 2 minus 1 1 and 5. Okay, so that will be 2 into 5 minus cover. Okay, so 10 plus 1 that is equal to 11. Okay, so here delta is equal to 11. Okay, next find out, so next delta x. So delta x means x की वैल्यूज को आप रिप्लेस कर दीजिए b से. सो x की वैल्यूज को x इक्वल टू में b, सो आपकी वैल्यूज हो जाएंगी -3k 7k and -1 and 5. सो इन वैल्यूज को आप सॉल्व कीजिए. सो दैट विल बी -15k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7k, दैट इज इक्वल टू माइनस का 8k. ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ मिल गया डेल्टा ऑफ x इक्वल टू -8k. ओके, likewise delta y will be 2 1 -3k and 7k. Here we have put that y equal to b. So okay, so that will be 14k minus plus 3k, so that is equal to 17k. Okay, so finally delta of y that is equal to 17k. Okay, सो यहाँ से आप XYZ निकाल लेंगे. Therefore
by Cramer rule, by Cramer's rule, that x equal to delta of x divided by delta, that is equal to minus 8 by 11 k. Okay, and y equal to delta y upon delta, that is equal to 17 by 11 k. Okay, so now put this value in equation number 6. So now check satisfaction solution. So now check the value of x and y whether satisfied equation number 6. So now check that this solution satisfied the equation number 6. So आपकी क्वेश्चन नंबर क्या है? x minus 6y plus 10k, that is equal to 0. That is x की वैल्यू आप पुट कर दिए यहाँ पे, minus 8k upon 11 minus 6 into 17k upon 11 plus 10k, that is equal to 0. So that will be minus 8k minus 102k plus 110k divided by 11, that is equal to 0k divided by 11 equal to 0. Hence satisfied. So we can say, satisfied. Therefore the system has infinite number of solutions. Infinite number of solution. So it have a consistent system. So system is consistent. So system is also
consistent, or system has all system has all system has trivial solution. ओके, सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू k की टर्म में है, दैट इज -8/11 k, y इक्वल टू 17/k and z equal to k. Okay, so this is your answer. Here k is real number, k is any real value. ओके, सो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन में हमने देखा कि उसके सभी जो मैट्रिक्स बी है वो हमेशा 0 होगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, हम ये उसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हम डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड निकालेंगे। क्यों निकालेंगे इस चीज को? ताकि हमें ये पता चल जाए कि सिस्टम के पास में इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा या माइनस सोल्यूशन। ओके, सो हमने यहाँ पे डेल्टा मींस डिटरमिनेंट ऑफ एक्स निकाला है। हम यहाँ पे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड सबसे पहले कंसीडर करेंगे और चेक करेंगे कि मेरा गिवन सॉल्यूशन क्या है, ट्राइवल है या नॉन ट्राइवल है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रॉम हियर पर्टिकुलर सॉल्यूशन को देखने से हमें पता चलता है कि इसका या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो टू चेक वेदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या करता है, उसके लिए हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशंस के पास में सॉल्यूशन 2 ही होता है। ओके, सो हमने सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट निकाला, जो कि हमारे पास में यहाँ पे 0 आया डिटरमिनेंट। ओके, हमारे पास डिटरमिनेंट ये 0 आया। फिर हमने डेल्टा ऑफ एक्स निकाला। सो डेल्टा ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, हम एक्स के सभी कोफिशिएंट को b से रिप्लेस कर देते हैं। सी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉलम हियर मीन्स x इक्वल टू b, x इक्वल टू b मीन्स replace all element with matrix B, with matrix B. Okay, likewise हम क्या करेंगे इसी तरीके से हम डेल्टा वाई निकाल लेंगे और डेल्टा जेड निकालेंगे, जो कि इस केस में 0 आएगा। देन इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है एंड इसका जो सॉल्यूशन है वो ट्राइवल सॉल्यूशन है। ओके, सो अब सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है तो क्या करेगा, इट मीन्स ट्राइवल सॉल्यूशन मीन्स सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है। ओके, सो कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना, और चूंकि यहाँ पे सभी वैल्यूज आपके 0 हैं इसलिए इसको हमने ट्राइवल सॉल्यूशन कहा है। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो किस पे करेगा, तो सॉल्यूशन जेड पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको हमने डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कहा है। ओके, सो लेट पुट जेड इक्वल टू के, हम लीनियर इक्वेशंस को के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स बेसिकली हम यहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ बेसिकली ये वैल्यू पुट करके क्या करें, कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्ट करें। क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, हम एक होमोजेनियस को नॉन होमोजेनियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो
जो आपकी इक्वेशन होमोजीनियस थी होमोजीनियस इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट की, और फिर से कन्वर्ट करने के बाद में फिर से हमने क्या कर दिया, सो ये हमारी इक्वेशन जो कन्वर्ट हो गई है। सो दिस इज बेसिकली दी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। फिर से हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर अगेन मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। सो अगेन हमारे पास में ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास में। सो दैट इज ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गई, ये हमारे पास में एक्स आ गई, इक्वल टू हमारे पास बी आ गई। ओके, सो दैट इज ए वेयर, सो हियर ए, सो हियर जो ए है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है, and x matrix of input, matrix of variable, and b matrix of output value, matrix of output value, ओके। सो आप देखिए ये आपके पास में ये 2 आ गए, ये जो वैल्यू थी आपके पास में यहाँ से ये आ गई। ओके, ये जो वैल्यू थी आपके पास में ये आ गई, एंड -5 की जो वैल्यू है वो ये आ गई। ओके, सो इन वैल्यूज को हमने लिख लिया है। फिर इसके बाद में अगेन हमने यहाँ पे फिर से डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स बाय रिप्लेसिंग दी आउटपुट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बाय फाइंड आउट किया। ठीक है, सो फाइंड आउट करने के बाद में हमारे को डेल्टा मिल गया, हमारे को डेल्टा एक्स मिल गया, हमारे को डेल्टा एक्स मिल गया, डेल्टा वाई मिल गया। फिर इन वैल्यू को हमने यहाँ से हमने अननोन सॉल्यूशन निकाल लिया, एक्स और वाई निकाल लिया। फिर हमने पर्टिकुलर वैल्यूज को सेटिस्फाई कर लिया, चेक कर लिया कि ये पर्टिकुलर वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो पर्टिकुलर ये केस आपके पास में बन गया, जिससे हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर केस में आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। देन आफ्टर हमने पता चला कि हमारे पास में फॉर वैल्यू ऑफ के एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सिस्टम कंसिस्टेंट है और ट्राइवल सॉल्यूशन है। सो हियर इज द सॉल्यूशन। सो एक्स की वैल्यू आपके पास में -8/11 के, 17/k एंड जेड की वैल्यू k, जो कि k यहाँ पे क्या है, एनी रियल वैल्यूज। ओके, सो आई होप सो आपको होमोजीनियस इक्वेशंस को ग्रामर रूल से कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।